Good morning everybody. So today I am going to take up alternative English, and that is prose, and one chapter that I have finished, and today I am going to take up again the second chapter. I think you have finished, you must have finished the question answers of Memories of Crossgate Schools, and by George Orwell. It was very interesting. I don't know whether you have understood or not. I have given you, and today I am going to take up again another chapter in prose. Make me a child again just for tonight. Child again just for tonight. So this is written by Milton R. Stern, and he is a very famous writer, and from the poetry itself he makes so many prose. His quality is from poetry also he can make the prose form of each poetry, and that is the one of the most important part he plays. So make me a child, what is the meaning of make me a child again just for tonight? For tonight, for today only, please, oh God, give me today's night only, for today's night only, you make me a child, so that what are the things, what are the memories I have, what I have done during my childhood days, the same I can do today also. Understood? So that is why he says, make me a child just for today, make me a child again just for tonight. So this is what happens. Almost every one of us, the fond memories of childhood and wants to become child again. जदि तुमको थोड़े सुजोग दिया जानता ताहले तुमको कहा जानता जे तमे लाइफ रे एति जाए जो ट्रैवल करिचो को लाइफ टे को तमे पसंद करिवो सबु बेले. तो प्राय मैं भावुची समस्ते कहिबे जे मते एई लाइफटा मते दरकार, माने चाइल्डहुड टाइम्स जोठी ना तो चिंता अच्छी, ना तो दक अच्छी, ना तो पाठ पढ़िबार अच्छी, ना किछि करिबार अच्छी. जस्ट प्ले एंड किछि नाही मन भितरे, ना टेंशन ना किछि. सो दैट इज व्हाई ही सेज almost every one of us had the fond memories of childhood and therefore wants to become a child again. So in this section, what you have to do, you have to go on reading, and in order to get actually the central meaning of the passages. So skip and skim whenever you feel you can safely do this. Means the whole of the summary of the points, whatever you get from the chapter, that you have to grasp it. So very important is, the author is trying to say you don't have to read every single word or every single sentence. By thinking along with the author's pattern of thinking, you can predict what is likely to come next, and whether it is important, less important, or completely unimportant to the central meaning of the text. So, and what you have to do, first you have to, in alternative English, one of the most important is the average learner, what he needs, you have to take 4 to 6 minutes to complete a quick reading of the passage with the aim of grasping the central idea of the piece. So I told you what is the most important central idea of this whole of the prose. So now make me a child again just for tonight. Backward turn backward, O time in your flight, make me a child again just for tonight. Means the author is telling backward turn, move to the back, means flashback.
Okay, now to the childhood days. Go to the childhood days, backward, turn backward. Oh time, he is referring to time. Here the time has been personified. Personifications means anything, whatever those things, those are non-living, intangible. Those things it can be personified, means as if it is a person. It's called personification. Okay, so personified, here it is the time. Sometimes the writer also uses to the death also. Oh death, be not be proud. That is also another type of, so the same personification for death. Oh time, here it is telling backward, turn backward. Oh time, he is referring to time as if time is a human being. Oh time, do not fly, do not take a flight so suddenly. Go back to the old days, means go back to the olden times, means the memories. Make me a child again just for tonight. Whatever it has happened during his memorable days, during his childhood days, please take a turn again, move back, go to the back. So the lines above are from a poem called Rock Me to Sleep Mother by Elizabeth Akers Allen, who was born in 1832 and died in 1911. So these lines are taken from Rock Me to Sleep Mother, means the poet is referring to a poem, Mothers. Oh mother, please rock me, means please make me to sleep, and that is by Elizabeth Akers Allen, who was born in 1832 and who died in 1911. By modern standards, this quotation is inexcusable, sentimental and inaccurate. If you go to the modern age, that is in 1832, so if you come to the modern age, you will see this quotation is inexcusable, sentimental. It is very sentimental and it is very emotional, but it is very inaccurate. Understood? So how can the time may go back to the it can fly back. It cannot fly again to the front, but it can fly back to the back, take a turn to the back, so that the child also can move back to the back, so that the person can go to his memorable childhood days. So it is very sentimental, it is very emotional, but it is very inaccurate also. How can the time can fly? And it is very inaccurate and sentimental, you cannot see. It is very sentimental, that is why the poet is telling that it is very emotional type, because as he wants to go back to his childhood days, and just also that is for only one time, so that again he can go through all the memories, all those colors and creeds, whatever he had passed on during his childhood days, so that now he can go to that place and he can find the lovable person, the lovable things, whatever he has done during his childhood days. So we moderns know better than to think of childhood as happy and carefree. तामाने कहउचंती जे Akers Allen जे कि एटा लिखिचंती बैकवर्ड टर्न बैकवर्ड, कहा को कहउचंती? समय को कहउचंती। तो आउ थरे ए समय तू पछको घुरी चल, ताहाले मो तू फेरी चल, ताहाले मो मोर जो छोट बेलर दिन को फेर आउ थरे फेरी जाती कि, ताहाले मु जो जहा किछि करिछि मो छोट बेलरे दिन रे सेई गुडा को फेर आउ थरे मु करंती कि, से सेया कहउचंती। किंतु जदि तमे मॉडर्न समय को नब, जो जदि तमे एई समयटा को नब, एटा बहुत इमोशनल कथा। जणे कहिब जे तमे मते समय तो फेरी चल, मोर सेई
छोट बेलर सान बेलर दिन गुड़ी को फेर आउ थे फेरी आसंता किंतु सेटा केबे भी पॉसिबल नुहे से बहुत इनएक्यूरेट. We moderns know better than to think of childhood as happy and carefree. We have gone to another, perhaps over solemn extreme. आमे एते बाट चली आसिलुनी तो सेठी आउ थे फेरिकी बुलिकी चाहिबा बहुत कष्टकर. We hold that childhood is such a difficult time of life that we have child guidance associations and child study clinics and child psychologists and child centered homes and host of similar institutions in order to make childhood endurable for the infants who have to live through it. से कहते जदि तुम कहूच समय को ओ समय तू मत फेरी चाल तू मत नहीं जा मोर से छोट बेलर दिन को किंतु जदि मॉडर्न एज रे आमे देखिबा एबे इम्पॉसिबल कथा जदि कौन सी माँ को भी जदि कि पचरा जाए जे ऑलरेडी तो पिलाटी बड़ होईछि आ तू ताको चाहिबे को तू से छोट बेलर पिला तो छोट बेलर दिन गुड़ को ताको फेरी देबा पई से माँ केबे हेले राजी हबनी काहे ना जो कष्टरे दिन गुड़ी को जाइछि ता मार से पिलार भी मध्य काहे ना आजिकाली प्रत्येक घरे माँ और बापा दिजण जाक होचंती सेल्फ एम्प्लॉयड. तो से माने बहुत कष्टरे तांको छुआ माने को से माने मनीष करथांती. तो मॉडर्न एज रे ताकू करिबा बहुत कष्टकर बहुत काठिक पाठ. सेति से कहउचंती चाइल्डहुड सच ए डिफिकल्ट टाइम ऑफ लाइफ. जो चाइल्डहुड आमर जो चाइल्डहुड समयटा इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम बिकॉज वी हैव चाइल्ड गाइडेंस एसोसिएशंस बहुत गुड़े जगार अच्छी आमर अवश्य नहीं ये जेहेतु यहाँ हूँ अमेरिकन सोसाइटी रो अमेरिकन लिटरेचर उपर डिपेंड कर बहुत गुड़े कथा से थाए चाइल्ड गाइडेंस एसोसिएशंस से माने कौन करती पिलाटीर तार कथा वार्ता उठा बसा सबकि देखती तापरे से माने जाएकि से गाइडेंस अनुसार देखती जे पिलाटी एक्चुअली कौन चाहूँगी कहीं पेरेंट्स माने ताको चाहूँगी आणिकी माने जेहेतु से माने निजे सॉल्व करि पारनांती जानी पारुनांती पिलाटी कौन चाहूँगी तो से जो गाइडेंस एसोसिएशंस अच्छी से माने से प्रॉब्लम पिलाटीर सॉल्व करने को चेष्टा करती. एंड चाइल्ड स्टडी क्लिनिक्स and child psychologists and child centered home and a host of similar institutions बहुत गुड़े चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मध्य आउ से भली भाव चाइल्ड सेंटर्ड होम्स मध्य आउ से भली भाव सिमिलर इंस्टीट्यूशंस अच्छी इन ऑर्डर टू मेक चाइल्डहुड इनड्यूरेबल फॉर द इन्फेंट्स. माने पिलाटे जो इन्फेंट स्टेज रे जो जहाँ जहाँ सी जो थे गति करी से गुड़ाक से जानापी चाहूँगी एंड हु हाव टू लिव थ्रू इट जो गुड़े से गति करची जेहेतु पिलाटी बहुत तार पाटी खोली न थाए तार कौन होउछु बेली भी से कही पारेनी आउ ताकू जो जो कष्टटा हुए से वर्णना करि पारेनी ताहाले से जो जीवन भितरे जदि काहाको जदि कुहा जाए चाइल्डहुड डेज बहुत भल ना चाइल्डहुड डेज रे बहुत गुड़े कष्ट रही जहाँ कहवा कथा यही जो आमर जी राइटर अच्छी अनुसार. बट एवरी एज हैज इट्स ओन काइंड ऑफ सेंटिमेंटालिटी. सो प्रत्येक एज रे तार निज निजर इमोशंस रही. चाइल्डहुड बिलंग्स किसी गोटे सेंटिमेंट्स रही इमोशंस रही एंड आउ कि बड़ हो गला परे जिते बेले आम यंग एज रे आमे पहुँचू सेते बेले भी किसी सेंटिमेंटाल ताकू से भी अलग प्रकार रही. एंड हु हैव क्रिएटेड द सोप ओपेरा कैन स्कैर्सली अफोर्ड टू थ्रो स्टोन्स आर द लेट विक्टोरियंस. देखो ये चली आसला तो सेटा हमको कहगला चाइल्डहुड डेज विषय रे कि प्रत्येकर चाइल्डहुड डेज रही किंतु कहवाकू गले एठिकार अर्थ होची जितेबाला आम सेकेंड पार्टा सेकेंड सेंटेंस को आसुचु सेठी एठी राइटर कहवाई चाहूँगी
जे आमर जो इंग्लिश लिटरेचर अच्छी सी तार अनुसार बहुत गुड़े तार एलिजाबेथन एज, रेस्टोरेशन पीरियड, तापरे विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, यही भाव में मॉडर्न एज, 21st सेंचुरी एज, यही भाव में सी विभक्त होती। तो प्रत्येकंकर जेमितिक एलिजाबेथन एज रे बा रेस्टोरेशन पीरियड एज रे, रेस्टोरेशन पीरियड रे जेते सब क्लासिकल लिटरेचर थिला से गुड़ी को ताकू आनिकी फेर आउ थरे ताकू पाठ पढ़ा जाए कि ताकू फेर वर्णना करा जाए, लिटरेचर आसे। किंतु जेते बेले एलिजाबेथन पीरियड आसे बा शेक्सपियरियन एज आसे से समय रे मनीष सेते बेले को ऑलरेडी जहाँ किसी लिटरेचर अर्थ होची इट इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। तो शेक्सपियर जेते बेले लिखिबा स्टार्ट कले से सोसाइटी ऊपर लिखिकी गोटे ड्रामार फॉर्म देले। तो जो भली भाव में सेटा लोक मान को बहुत आकृष्ट कला आउ से भली ड्रामा गुड़िक चारिआडे तार थिएटर रे प्ले करागला। सो दैट इज वाई सेटा को कहा जाए शेक्सपियरियन एज। सो जहाँ किसी घटना घटुला ताको वर्णना करागला गोटे थिएटर उपरे से भली आसिला। देन आसिला तमर से पीरियड रे ड्रामाटार इम्पोर्टेंस बहुत बेसी थिला, से सेंटिमेंटालिटी उपरे बहुत बेसी कुहा जाउथिला। किंतु परवर्ती स्टेज रे जेते बेले विक्टोरियन पीरियड आसिला सेठी आसीगला तुमर प्रोज रो एज, माने सेठी बेसी इम्पोर्टेंस दियागला एसे को, सेठी बेसी इम्पोर्टेंस दियागला प्रोज को। किंतु जेते बेले रोमांटिक पीरियड आसिला सेते बेले मनीष कौन कला, दे स्विच ओवर टू द प्रकृति, टू नेचर। एज वर्ड्सवर्थ, शेली, किड्स, नंबर ऑफ पोएट्स दे केम आउट ड्यूरिंग द रोमांटिक एज। जेते रोमांटिक एज आरंभ हला से समय रे प्रकृति को बेसी इम्पोर्टेंस दिया गला आउ जहाँ प्रोज पोएट्री उपरे बेसी पोएट्री उपरे ही लेखिबा मनीषर सेंटिमेंटाल एमती है से पोएट्री उपरे बेसी लेखागला, पोएट्री को बेसी मात्रा रे स्ट्रेस दियागला। सेथिपाई सेही समय लोक मानकर प्रकृति उपरे तांकर बेसी भल पाइबा थिला, जहाँ द्वारा कि सेही अनुसार लिटरेचर भी डेडिकेटेड हैला पोएट्री को। सो दैट इज कॉल्ड रोमांटिक एज। तो सी कहते जे बट एव्री एज हैज इट्स काइंड ऑफ सेंटिमेंटालिटी। प्रत्येक एज मनीषर जदि एज भी कहा जाए छोट बेलर सेंटिमेंट्सटा डिफर कर जिते बेले तुम्हें बड़ हो तापर गोटे एज आसब युवक अवस्था जोठिकी से सेंटिमेंटाल आउ जो छोट बेलर सेंटिमेंटाल डिफर कर। तापर गोटे हूँ यौवन पर जो ओल्ड एज आसला ओल्ड एज तार सेंटिमेंटाल आउ गोटे यौवन सेंटिमेंटाल भितर तफात आसब। से भली भाव आमर जो इंग्लिश लिटरेचर को जो भली भाव एज अनुसार डिविजन करा जाइछि से अनुसार भी मध्य एव्री एज हैज इट्स ओन सेंटिमेंटालिटी। तो गोटे एज रो आउ गोटे एज सहित कौन संपर्क नहीं, धीरे धीरे तार एजटा बदलवा को लगे। तो से प्रकृति जे भली भाव में मु कहली कि रोमांटिक एज रो ओन सेंटिमेंटालिटी रही जेहेतु से माने दे स्विच ऑन टू नेचर। That is why the whole of the people during that age they devoted to their literature to poetry। से माने प्रकृति को जेमिति भल पाउथिले लिटरेचर भी सही अनुसार है। सो प्रत्येक एज तार निज निजर सेंटिमेंटालिटी को रही। से तुम्हें कहे कहीपरानी जे से एज रो विक्टोरियन एज और रोमांटिक एज होची सेम, इट डिफर्स। विक्टोरियन एज रो सेंटिमेंटालिटी डिफर करिबो रोमांटिक एज को, से भली भाव में आम एज जो भली भाव में डिफर करे तांकर प्रत्येक लिटरेचर भी मध्य ता एज अनुसार तार डिफरेंस आसे। तो यहाँ हूँ तार अर्थ। सो एंड वी हु हैव क्रिएटेड द सोप ओपेरा से कहते कैन स्कैर्सली माने सोप ओपेरा केते बेले तैयारी हैला जो समय रे रेस्टोरेशन पीरियड बा शेक्सपियरियन एज बा एलिजाबेथन एज रे सोप ओपेरा तैयारी हैला। सोप ओपेरा माने ड्रामा
बा थिएटर कैन स्कैर्सली अफोर्ड टू थ्रो स्टोन्स एट द लेट विक्टोरियंस कारण जिते लेट विक्टोरियंस आसीगले से प्राय गुड़ा से गुड़ा सब डेडिकेशन चलीगला सेंटिमेंटल पोएट्री आड़क से कहते से केबे भी कह जाए जे तुम गोटे पत्थर फिंग लेट विक्टोरियंस मानक जेहेतु से कहीं एज रे पोएट्री लिखिले ताहले सेटा अजता हम कहीं प्रत्येक एज रो तार अलग अलग सेंटिमेंटालिटी रही एटा होची तार कथा So, they who have created the soap opera can scarcely afford to throw stones at the late Victorians. Sentimental as it may be, the quotation from Miss Allen's poem is worth a moment of study by people in the evening classes for what it suggests about learning process in children and grown-ups. The whole of the story होची तो कहवाक गले जो सेंटिमेंटल आमर इमोशंस जोटा कि मिस एलेन्स पोएम रे कहा जाइछि ए मोमेंट ऑफ स्टडी बाय पीपल इन इवनिंग क्लासेस जो लोक माने इवनिंग रो क्लासेस करती फॉर व्हाट इट सजेस्ट माने कौन कहती अबाउट द लर्निंग प्रोसेस माने पिला माने जो तांकर बढ़िबा अनुसार पाठ पढ़िबा किपरि भाबरे हुए एंड इन ग्रोन अप्स छुआ मानकर लर्निंग प्रोसेस जो तेते छुआ थिला बेले से माने जो पाठ पढ़िबे तांकर आउ जो लोक माने पाठ पढ़ुचंती बड़ होई सारी ग्रोन अप होई साला परे अडल्ट रे तो एई तीजन जाकंकर कोन डिफरेंस रही छी आंकर सेंटिमेंटल आउ ग्रोन अप्स कर सेंटिमेंटल एका सांगरे ABCD ये भी पाठ पढ़ुचंती ग्रोन अप हे गला परे एमाने भी ABC पढ़ुचंती तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एजेस सेंटिमेंटल एमानकर कोन सेंटिमेंटल गोटे पिला मानकर एज रो कोन इफ यू मैच्योर अडल्ट्स हु आर स्टडीइंग इन इवनिंग क्लासेस कुड बी चिल्ड्रेन अगेन जो माने पिला माने को भलिया इवनिंग क्लासेस रे बसिकी क्लास करूचंती से माने कोन केबे हेले आउ थरे से पिला बेले रे जो भलिया थिला जो भलिया मस्ती करुथिले जो भली भाबरे पिला गुडी को पाठ पढुथिले सेई भली भाबरे कोन एमाने सेई भलिया स्टेज एबे से जो स्टेज रे पहुंची कि सेई भलिया करि परिबे कि पिला मन को भलिया जस्ट फॉर दैट टाइम वी स्पेंड इन द क्लास जते बेले आमे क्लास रे हमरो समय अतिबाहित करछु we might be considerably surprised at how much faster and more easily we would learn. तो जदि आमे पिलार एज टाकू कंपेयर करिबा गोटे अडल्ट एज सांगरे ताहाले गोटे डिफरेंस रही छी जो समय पिला माने लर्न करुथिले ABCD आमे बड़ होई गला परे जते बेले ABCD लर्न करछु दिजन को भितरे आउ बहुत माने हेल आउ हेवन रो डिफरेंस रहउची कहीं रोची कहीं ना से कहते जस्ट फॉर दैट टाइम इज स्पेंड इन द क्लास वी माइट बी कंसिडरेबली सरप्राइज एट हाउ मच फास्टर एंड मोर इजीली वी वुड लर्न जिते बड़े हमें छोट थिलु व्हेन वी आर वेरी स्मॉल एट दैट स्टेज वी कुड लर्न मच मच फास्टर एंड मोर इजीली देन एट दिस एज देन एट दिस अडल्ट एज बुझीगला तो सेटा होल ऑफ द थिंग होची जे आमे जते बड़े पिला थिबा सेई स्टेज रे पाठ पढ़िले जते शीघ्र मने रखि पारो आ जते शीघ्र हमर लर्निंग एक्टिविटी संगे संग रही जाए जोटा कि आउ सेटा को इजीली कंप्रीहेंड करि पारो जोटा कि बड़ होई साला परे इट इज वेरी डिफिकल्ट So, and if we cannot actually be children again, जदि हमें सही भली स्टेज को न जाऊचे, perhaps we can pick up a few helpful hints by turning backward ourselves. ताले जदि हमें सही स्टेज को पिला भली का पिला माने जो भली पाठ पढ़ुचंदी सही भली जदि स्टेज को हमें न जाऊचे, ताहाले मु किछि हिंट्स दउची ताहाले हमें बेटर हबो आम निज को सही स्तर को नहीं जिबा just for tonight आजिका पाई and noticing some of the differences between the way children learn and the way grown up learns ताहले हमें सेठू जानी परिबा जे पिला माने जते बळे पाठ पढंती आउ जो माने ग्रोन अप हेचंदी पाठ पढंती तांको दिजन को मध्य रे
की डिफरेंस रोची है आज एतिकी थाउ जो दीटा क्वेश्चंस अच्छी तार सेटा करने चेष्टा कर कहीं मुझे तुमको एति मन रख अल्टरनेटिव इंग्लिश कौन से नोट्स दवाक जाऊनी आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड and you have to write it yourself and you have to submit the assignment. So up to this, what are the difference between a child learning and a grown up learning, that we'll see from 5 onwards. Okay, thank you everybody. So please do write the assignment and submit it. Thank you.